Next question which I am picking it, what would be the best stream for one who wants to study maths and history? Okay, technically this particular combination which you are asking me is a combination which is supposed to be weird, but I don't call it weird. So what you should be doing is you should be studying humanities with maths. With that combination, in later dates, you can be part of combination of economics and maths. You can be part of combination of political science and maths. You can be a part of history and maths, geography and maths. Those all options are available. So right now, to answer your question, you should take combination of humanities with maths. How will new education policy affect subject selection in next year? Again, please go to YouTube. I have shot a 12-minute video on new education policy related to school. I have shot 2 videos. One is for college, one is for school. Go and watch the school video. You will become very clear on how it is going to affect the coming school system. Sir, what if we want to go in science but biology and physics are strong, chemistry is weak? So what to do? Again, the same thing what you should do is what I told you for physics, for one of the child who asked me this question. You must study chemistry since you are just in start of grade 10. Give conscious extra time to chemistry, improve it. Sir, if a child is not at all good in academics and physical also, what should I do? My child, this is never possible. एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हमेशा जो है खोटा सिक्का भी चलता है, उसके अंदर भी कुछ क्वालिटी होती है. सो मैं बहुत बार जब बच्चों से बातचीत करता हूँ, बच्चे फॉर एग्जांपल मेरे पास सीवी लेके आते हैं हायर एजुकेशन के लिए. मैं सीवी में पूछता हूँ स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, यू नो व्हाट हैड बीन योर अचीवमेंट्स. सर, वी हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ. दैट इज नेवर पॉसिबल. जब आप अपनी 12-13 साल की लाइफ अभी तक बिता चुके हो, उसके अंदर आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ डेवलप हुआ ही ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं. सो आई थिंक better option would be to go for a professional counseling where they will be able to figure out what are your strength areas and based on that what further course of action you should take. And again एक चीज क्लियर कर दूं, एकेडमिक्स ही हर बच्चे के लिए राइट चॉइस होता है, जरूरी नहीं है. इंटरेक्शन ही हर बच्चे के लिए राइट चॉइस होता है, जरूरी नहीं है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही हर बच्चे के लिए राइट चॉइस होता है, जरूरी नहीं है. So we have to figure out what are your strengths. Based on that, we should give you, the next plan of action. Kanishk, I'm sorry, my child, I will not be able to permit you to unmute. You please post your question to me in the chat box. Sir, what science group should we take to be an astronaut or an aeronautical scientist? Very good question, my child. The right group for anything related to astronomy, astrophysics, aeronautical sciences is science A group. You should take combination of physics, chemistry and mathematics. Next question is, if we want to pursue law, is it compulsory that it must be done in Indian Law College? This is a beautiful question. I'll tell you. It is actually not necessary, but it is more favorable. How? Every country has got something known as Advocates Act of that country. For example, India also has an Advocates Act in which it is clearly written that anybody who is allowed to practice litigation in India has to be number 1 an Indian citizen, 2 should have studied law in India, because law as a subject is always of the land. जिस लैंड में आप हो उस हर लैंड का लॉ अलग है, और उस लैंड में जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उस लैंड का लॉ आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप वहां सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर पाओगे. सो अगर आप इंडिया से LLB बैचलर्स ऑफ लॉ करके फॉरेन से LLM करके वापस इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहते हो, डुएबल है.
इंडिया से एलएलबी करके, फॉरेन से एलएलएम करके, फॉरेन में सिर्फ कंसल्टेशन करना चाहते हो एज अ लीगल कंसल्टेंट और एन आर्बिट्रेटर और a corporate legal advisor or part of an international law firm और part of an MNC in international law division, आप कर सकते हो। लेकिन इंडिया से बैचलर्स करके, यूएस से या किसी और कंट्री से एलएलएम करके, वहां आप लिटिगेशन प्रैक्टिस टेक्निकली नहीं कर सकते। वहां जाके अगर आप उनका भी एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉज करते हो, उसके बेसिस पे कुछ कंट्रीज आपको अलाउ करती हैं कि आप उनकी कंट्री का फिर बार का एग्जाम देके क्वालिफाई करने के बाद वहां लिटिगेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वन ऑफ दोज कंट्रीज इज यूरोप, यूके। दे आर सम प्लेसेस जहां पे आप इंडियन होने के बावजूद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर, if I am not at all good in academics, I have answered this question. Sir, do you think that a lot of talents are being wasted in schools due to curriculum which involves nothing but rote learning? Parents also don't appreciate uniqueness and creativity due to same. My child, you are very right, and I must appreciate your thought. You are very very correct. इसी चीज को एड्रेस करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज कमिंग इनटू इम्प्लीमेंटेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कर रही है कि जो बच्चा रोट ओरिएंटेड है वो वैसे सब्जेक्ट्स पिकअप करे, जो बच्चा लॉजिकल है वो वैसे सब्जेक्ट्स पिकअप करे। विद इन दीज एरियाज अगर किसी को ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड लाइन में जाना है, इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड लाइन में जाना है, कमर्शियल स्टडीज ओरिएंटेड लाइन में जाना है, बिजनेस स्टडीज ओरिएंटेड लाइन में जाना है, तो वैसे सब्जेक्ट्स पिकअप करें। अगर इधर किसी को मैथमेटिकल ओरिएंटेड लाइन में ही जाना है, फिजिकल साइंसेज ओरिएंटेड लाइन में जाना है, एग्रीकल्चरल साइंसेज ओरिएंटेड लाइन में जाना है, स्टैटिस्टिकल ओरिएंटेड लाइन में जाना है, तो वो वैसे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस पिकअप करें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट 130 करोड़ की पॉपुलेशन की कंट्री में रहते हुए, जहां पे ऑलमोस्ट I would say close to 1.2 crore children appear for board exams every year. It is difficult कि आप वो चुटकी बजा के एक सिस्टम चेंज कर दो। 2022 से इम्प्लीमेंटेशन चालू होगा, लेकिन 2030 तक इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड चेंज हो पाएगी। सो आई अप्रिशिएट योर थॉट। इट इज गेटिंग वेस्टेड। टू मेक श्योर कि वो वेस्ट ना हो और अपने आप टाइप के सब्जेक्ट्स पिकअप करो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज कमिंग इनटू प्रैक्टिस। I have answered these questions. Sir, my aptitude is in both biology and computers application. What should I choose? Again, my child, it is only after assessment मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको दोनों में से क्या चूज करना चाहिए, बिकॉज बायोलॉजी की एप्टीट्यूडनल और इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिफरेंट है। हाँ, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th-12th में लेके उसके साथ एज एन एडिशनल कोर्स कंप्यूटर स्टडीज कर सकते हो। उसके बाद एन एरिया लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको सपोर्ट मिलेगा, बट आपको स्पेसिफिकली क्या लेना चाहिए मैं असेसमेंट के बाद ही बता पाऊंगा। Sir, I'm not at all good at academics. My child, please don't spam by putting this question time and again. I request you, which stream should we choose to become a psychologist, arts or science? I think this is an excellent question. My child, by and large, जो psychology है, that is part of humanities. तो आपको बी ग्रुप लेने की ज़रूरत नहीं है, साइंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ विद साइकोलॉजी पढ़िए, फिर बीए साइकोलॉजी करिए, फॉलोड बाय एमए साइकोलॉजी, देन एमफिल। उसके बाद अगर आप एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे एरिया में करते हैं तो आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएट करके यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। If you want to get into some other areas of psychology, then accordingly you can start practicing in a school or a college as a therapist, as an adult psychologist, criminal psychologist, and so on. So stream required for primarily psychology is arts. Sir, if science is bit weak and maths is good, then which
field will fall in that. अगर आपका मैथ्स अच्छा है और साइंस वीक है तो ऑब्वियसली आप मैथ्स और कमर्शियल स्टडीज के कॉम्बिनेशन में कॉमर्स के अंदर जाएं, दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. Sir, can I take science B group and still become an astrobiologist? Answer is yes. You can become astrobiologist after taking science B group. Sir, if someone wants to do medical sciences but not good at physics and chemistry, very very common question, और इस question को मैं कहता हूँ typical case of B group. जहां बच्चे का रोट ओरिएंटेशन, लिंग्विस्टिक्स, लाइफ साइंसेस अच्छा है, बायोलॉजी में उसके कारण उसका कमांड कंट्रोल सॉलिड है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हैप्पी बर्थडे है. इस केस को मैं कहता हूं टिपिकल केस ऑफ बी ग्रुप. अकेले बायोलॉजी से मेडिकल साइंसेस या बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आगे आप जाएं या जाना चाहते हैं तो वो सही नहीं होगा. माय अगेन आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी, क्योंकि आप जस्ट अभी 9th ग्रेड में हैं, आपके पास 2 साल का वक्त है. फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्शियस एफर्ट डाल के या तो उसको इंप्रूव करिए, 90-95% लेवल पे लेके आइए, नहीं तो बी ग्रुप का या मेडिकल ग्रुप के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन को लेने का जो है थॉट वो डिस्कार्ड कर दीजिए. गो फॉर एन ऑल्टरनेट ऑप्शन. Next is, which stream should we choose if we want to choose biology and English? तो obviously science B group. अगर आप biology और English पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ physics, chemistry complementary आएगी ही आएगी. Sir, my child is not good at anything, no skills, nothing. What shall he do? पहले तो मैं ये पेरेंट को बोलना चाहता हूं, अगर आप पेरेंट हैं, कि मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी इंसान के अंदर कोई गुण, कोई क्वालिटी, कोई स्ट्रेंथ, कोई एप्टीट्यूड, कोई इंटरेस्ट ना हो. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है, इफ दैट ह्यूमन इज नो मोर, इज डेड. सो मेरा एक बहुत रिक्वेस्ट के साथ आपको सजेशन है, पहले तो ऐसी चीज आप अपने बच्चे के बारे में सोचना बंद करिए, उसके बाद ऐसी चीज आप बोलना भी बंद करिए. ये मैं इसलिए आपको स्ट्रांगली बोल रहा हूं क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ मैं देख पा रहा हूं, कोई भी दूसरा जो है हमारा पार्टिसिपेंट देख नहीं पा रहा है. सो मैं जिस पेरेंट से मैं बात कर रहा हूं उनको मालूम है किन से मैं बात कर रहा हूं. मेरी बहुत हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट से सच थिंग्स. एंड इफ यू रियली वांट टू डिग आउट योर चाइल्ड, आप जानना चाहते हैं कि उस बच्चे की कोर स्ट्रेंथ्स क्या है, प्लीज कनेक्ट विद माय ऑफिस. आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू अ ब्रेन मैपिंग एंड देन सजेस्ट यू कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसको किस में जाना चाहिए. सर, आई वांट टू एंटर द एरोनॉटिकल फील्ड एंड आई हैव अ स्ट्रांग इंटरेस्ट इन PCM, बट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स. तो बहुत बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम है, आप PCM लीजिए. PCM के साथ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 5th सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके अंदर आप कंप्यूटर साइंसेस ले लीजिए. नथिंग टू वरी, दिस इज अ वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन अवेलेबल. सर, आफ्टर 12th व्हाट शुड यू बिकम, ईदर एन एस्ट्रोनॉट और एन एरोनॉटिकल साइंटिस्ट? बेटा मैंने आंसर ऑलरेडी कर दिया है. सर, इफ आई वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया टू स्टडी, व्हेन इज द राइट टाइम टू गो? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. अगर आपको दोनों रास्ते सेटलमेंट के खुले रखने हैं, मतलब कल को आपको फॉरेन कंट्री में सेटल होना हो तो भी आप हो सको, इंडिया वापस आके सेटल होना हो तो भी आप हो सको, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप ग्रेजुएशन इंडिया से करिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाइए. अगर आप वंस एंड फॉर ऑल इंडिया किसी भी सर्कमस्टांस में सेटल कभी भी होना ही नहीं चाहते, चाहे बाहर जाके आपको टैक्सी चलानी पड़े, भीख मांगनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, उस केस के अंदर मैं जनरली बच्चों को बोलता हूं कि स्ट्रेट अवे 12th के बाद आप बाहर चले जाओ. बिकॉज अगर आप 12th के बाद 5 या 6 साल की एजुकेशन फॉरेन कंट्री में लेते हैं तो वापस इंडिया आके सेटल होने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है. लेकिन अगर आप एक सेट ऑफ एजुकेशन इंडिया से करेंगे, दूसरा सेट ऑफ एजुकेशन फॉरेन से करेंगे, तो आपके दोनों रास्ते खुले रहेंगे, आप दोनों में से किसी भी जगह सेटल हो पाएंगे. सर, इफ माय चाइल्ड
Sir, people are still confused that academics is the only way to success. Most of the people about whom we study in the books did not have formal education. My child, you are very very right. As I told you, मैंने इसमें भी बोला, एकेडमिक्स ही हर बच्चे के लिए बना है जरूरी नहीं है. बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए बनते हैं. तो अगर आप देखो, अगर आप ये कहो कि सर मेरे को सिर्फ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के एरिया में जाना है, लेकिन मेरे को ना तो कम्युनिकेशन आती है विच इज बेसिक इंग्लिश, ना मेरे को बेसिक कैलकुलेशन आती है कि मैं नंबर्स के हिसाब अगर बैंक में जाके अपना पैसा भी जमा कराना हो तो भी मैं नहीं करा सकता, मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती. दैट लेवल ऑफ इलिटरेसी इज बैड. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. जो लोग फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू नहीं गए हैं उनके भी ये वाले स्किल्स, बेसिक जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आता है जनरल एप्टीट्यूड में, लैंग्वेज स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, और मैथमेटिकल या एनालिटिकल स्किल्स आता है. ये 3 स्किल्स आते हैं जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड की लैंग्वेज के अंदर या जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं. किसी भी आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल की पर्सनालिटी के पास चले जाइए, ये 3 स्किल तो होंगे ही होंगे, फॉर्मल एजुकेशन हो या नहीं हो. सो मेरा मानना ये है 12th तक आपको टेक्निकली फॉर्मल एजुकेशन मिलता ही नहीं है, आपको जनरल स्किल्स ही डेवलप करने को मिलते हैं और आप वही डेवलप करिए. उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड कैंडिडेट हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कैंडिडेट हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप स्किल बेस्ड प्रोग्राम में टेक्निकली डिप्लोमा के थ्रू भी जा सकते हैं, या स्किल बेस्ड और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे डिजाइन का एरिया प्योरली स्किल बेस्ड, एकेडमिक ओरिएंटेशन उसमें नहीं है. स्पोर्ट्स का एरिया है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का एरिया है, वोकेशनल स्टडीज का एरिया है, होटल मैनेजमेंट का या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का एरिया है. उसके अंदर बहुत ज्यादा एकेडमिक ओरिएंटेशन नहीं है. दे आर ऑल स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स. So you are right. You can develop a skill also and practice that skill to be successful. There is nothing wrong. Sir, if I want to do business, so can I do that from science? Answer is yes. कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स के बाद बिजनेस या जॉब या कंसल्टेशन कर सकता है. दिस इज ओपन टू एवरीबडी. तो आप साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स तो इस बेसिस पे लीजिए कि 10th में आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं. बिजनेस कोई भी बच्चा कर सकता है. सर, what combination should a person take who wishes to become a geologist? Wow. To become a geologist, primarily you should be very good with physics and earth sciences. That is physical sciences and earth sciences. That is the combination of geologist. So to be in the same line, you should be studying science A group in 11th 12th, and after that go for pure sciences and study geology as a stream of choice or a subject of choice. Right. I think I have finished all the questions till now. I had stopped the entry of more questions because already there were 35-37 questions in the list. So since we are already short of time, if there is nothing else after this and you want to continue for 5-10 more minutes, I am absolutely fine. I can continue answering your questions. So I will request Priya ma'am to just let me know if they have any other classes or other things scheduled, then I'll have to close the session because the time given to me was 9:30 to 10:30. Ma'am. Yes, sir. They have a class, but that's not the issue. If anything very personalized, if they can reach out to you, was my point, sir. If at all very much. Ma'am, can you please repeat your question? I'm sorry, my speaker was off. No, sir. I was just saying, if any more personalized questions they have, maybe they can reach out to you personally with their parents in loop, so they can sit and have a consultation with you, sir. Ma'am, no worries. What I will do is, I will, if with your permission, I will share with them 3-4 things which will be of great help to them. Fine. One, I will give them link to download the free career guide in which I have talked about 21 verticals जो मैंने आज डिस्कस किए हैं. उन सब वर्टिकल्स की डिटेल उस गाइड में है, तो मैं वो लिंक आपसे शेयर करता हूं जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, यू विल हैव टू पे 250 रुपीज. सेकेंड थिंग, आज का पीपीटी काफी सारे बच्चे मांग रहे हैं. ये पूरा वीडियो YouTube के ऊपर जाएगा. मैं आपको YouTube का लिंक शेयर कर देता हूं, आज की पीपीटी का स्पेसिफिक लिंक. वहां से आप
इस पीपीटी को देख पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सर्च इट विद योर स्कूल्स नेम। तीसरा, अगर आपका कोई सवाल है तो मैं हर वीक आस्क मी एनीथिंग सेशंस कंडक्ट करता हूं यूट्यूब लाइव पे। उसका लिंक मैं आपको भेज देता हूं, जहां आप यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। I will take that question on priority and answer in my next AMA session, that is Ask Me Anything session. I'm also giving you link of my office where you can connect with my secretary in case you want a personal career counseling. या अगर आपको इंडिविजुअल कोई करिकुलम या प्रोफेशन के रिलेटेड हैंडबुक चाहिए किसी भी वर्टिकल को एड्रेस करती हुई, उसका एक मैं लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं। और अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए IQ डिजिटल के साथ कनेक्ट करना है, विच इज अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसका टेलीफोन नंबर मैं आपको दे रहा हूं। सो यू कैन सी इन योर चैट बॉक्स आई हैव गिवन यू ऑल द लिंक्स इन द सेम सीक्वेंस जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन टू मी ऑन द लिंक गिवन। गो टू यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू दैट चैनल। बहुत सारे मैंने आपके क्वेश्चंस जो आप मेरे को पूछते हैं, उनके क्वेश्चंस उठा के मैंने वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाले हैं। वहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज को एड्रेस करने की, राइट। वंस अगेन थैंक यू सो मच अनुपमा मैम, थैंक यू सो मच प्रिया मैम, ऑल द अदर टीचर्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, प्लीज स्टे होम, stay safe, God bless you, and thank you once again. Sir, a request, if you can just unmute Bhuvi, the participant. She would like to thank you on behalf of all the students. Bhuvi Malu? Yes, sir. Sure, ma'am, I'll do that. Go ahead, Bhuvi. Happy afternoon, sir. Very good afternoon. I would like to thank you for guiding us at this crucial juncture, like for letting us know about so many venues waiting for us, and almost which of them we did not even know that they would exist. And thank you for giving us a clarity of vision regarding our career choices based on our interest and aptitude. We did not know that having so many options in science and commerce and humanities would help us go having such a wide spectrum of career options. People used to think that if you do not like science or you don't have options in humanities, can only go for commerce. But after the session, I'm damn sure that they might have changed their imagination and sensibility, that not only commerce has career options, but even science and humanities also have many aspects to go for the future. That's and absolutely right. And not only academics would have any future careers, but even practical applications can also be your future. So I'm really grateful to you to having this session with us. I hope you all kids have enjoyed this session. I tried to make it as interactive as possible. And just a last word for everybody, which will, I'm sure, give a lot of goosebumps to all of you. Just for your knowledge, even if you have taken humanities now, as per the new education policy in India, still you can do BE, that is Bachelor of Engineering, specializing in artificial intelligence, irrespective of the fact whether you studied maths or not, whether you studied computer sciences or not, or whether you studied actual sciences or not. So when this level of change is coming in a particular education system, believe me, you have got a sky level of options in front of you, which you will be able to explore in the coming days. I have put up a beautiful video again on YouTube, New Age Career Options, in which I have covered 17 verticals and I have shared with you more than 100 futuristic careers, which we don't hear or see these days. And they are the careers of the future. Go and have a look at it. I'm sure you will enjoy it. God bless you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you, students.